Hi guys, welcome back to my channel. It's day 6 and it has been actually more than half a day has been gone. It's 5 o'clock already. The day has been really weird off. I started my day anyways late and I kind of like just finished editing yesterday's vlog. I put it up before the noon and I just wanted like to be it like out of the way but before anything else starts, because then it just keeps getting late and late and late and I've been kind of like uploading it at 2 o'clock 3 o'clock, very odd hours. So I thought let's not do that today. So I successfully uploaded that on time, caught up on work. I have my period, so most of the housework was done by Gaurav, and then I thought I'll just come and talk to you guys after getting a little bit free. But then I got some news which really put me off, which was really sad, and I kind of didn't want to vlog at all today. I don't think I can still vlog today. It's not going to be a regular, hey guys, how are you doing? And I did this and that and that and that. I can't. It's just not going to happen today. But I still wanted to put out a video no matter what. And I kind of actually, my whole agenda of today was about talking about something which is important, which can help others as well. So that's why here I am. I've been a person who is very open about periods, who can have a conversation with anybody of any age about periods on any difficulties that they might have in understanding the concept or the difficulties of the concept. I can just explain it to them if they are comfortable in listening. But I have been using pads, okay, for the longest time. I think everybody does, and it's the easiest resource that we have. First of all, pads are really uncomfortable for me, at least. I mean, they are uncomfortable, they leave rashes, you have to change it so many times, and I have a very heavy flow, so it kind of just is a hassle for at least first 3 days. And I think it's mostly with everybody. I actually even tried tampons, but they just didn't work for me. Because they kind of leak at any point of time. There's no guarantee and there's no knowing that at what time you should really change. And I can't go in and check out like every 2 hours. I can't really keep checking on it. Then I came across menstrual cups about a year, 2 years ago, but I don't know. I never had the guts to actually try it because it just seemed so uncomfortable. The whole concept of like putting something of that size, of that material in your body is very uncomfortable to even think. I mean, even after using it, I am very comfortable with it now. But even when I speak to my friends or suggest somebody, and the first thought they have is that, really, isn't it uncomfortable? Like, how can you even do that? That is what their first instinct is, and I totally understand. I have been going through that too, but I just thought bahut ho gaya, ab to I have to give it a try, because you can't stop your life, right? And pads kind of does. You can't do any other activity. You can't go into swimming pool or without feeling icky, or any other comfortable stuff. It just doesn't happen. So then I just I'm not promoting any brand. It's just I'm already using one and I only have one right now, so I can't really show you that. So I'm just going to show you it's which product am I using. Okay, so this is a Safe Cup menstrual cup which I use, and it's made in USA. But I kind of like read all the what do you say? I read all of the reviews and researched, and whatever felt the perfect, I just bought it. One tip while buying it: buy a non-color cup, because it has less chemicals, it has less colorant and all of that, so it's better. It's for you, for your body. It's better that way. That's what I gathered from the information which I got from online, and it kind of makes sense. So yes, and these are very soft. The material is really good. It is very comfortable. So once you know how to put it and once you kind of have the hang of it,
you forget about it. Like you don't even realize, or you don't even feel that it's in you. So and I just realized I'm talking a lot in English, but I really want to make an effort and just like speak in Hindi. But yeah, so एक टिप, बिना कलर का वाइट कलर और जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट खरीदिए. द सेकेंड इज, एक बार आने के बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं दैट आपको बॉईल करना है उसको बिफोर इवन यूजिंग इट वंस. उसको प्रॉपरली एक पतीले में गर्म उबलते हुए पानी में डाल के यू हैव टू बॉईल इट. और डोंट वरी, मटेरियल को कुछ नहीं होगा, इट इज़ सेफ फॉर हीट. और उसको फिर ठंडा करके धो के देन यू कैन यूज़ इट. दूसरा टिप है, इसको ना पीरियड्स में होने के पहले ही मंगा लो, लाइक अबाउट 15-20 डेज पहले. और कीप ट्राइंग, लाइक प्रैक्टिस इट. यू रियली हैव टू प्रैक्टिस इट. इसको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए रहता है एंड काफ़ी पेशेंस चाहिए रहता है, बिकॉज एक दो बार तो करने के बाद यू जस्ट फील लाइक कि नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू ट्राई इट. पैड्स ठीक है एंड मैं बस वही यूज़ करते रहूँगी, बट आई रियली 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 अर्ज यू टू ट्राई इट. अगेन, आपके नेल्स प्लीज़ जितने छोटे हो सके उतने रखिए, या तो फिर काट दीजिए. दैट्स द बेस्ट फॉर योर ओन सेफ्टी. दूसरी बात है, जस्ट इन बिटवीन आप जब यूज़ करते हैं तभी भी उसको गर्म पानी से वॉश करने का ट्राई कीजिए. आई मीन वी ऑल हैव ऑलमोस्ट, अब तो सबके घर पे गीज़र्स होते हैं. सो इन बिटवीन आप गर्म पानी में वॉश करके ठंडा करके देन यू जस्ट लाइक पुट इट ऑन अगेन. आई एम नॉट गोना शो यू कि कैसे पहनते हैं उसे या कैसे ये करते हैं, बिकॉज उस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है एंड जो मैं लिंक्स डाल दूँगी जिनको देख के मैंने ट्राई करना सीखा एंड मैंने प्रैक्टिस किया. बट ऑनेस्टली और कोई आपको कुछ नहीं टिप्स दे सकता. आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद ही देख एक्चुअली आपके लिए काम करता है. थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लीकिंग भी होता है अगर आपने उसको प्रॉपर्ली प्लेस नहीं किया हुआ है, बट डोंट वरी, कप एज सच लीक नहीं होता है. वो इसीलिए लीक होता है बिकॉज वो प्रॉपर्ली प्लेस नहीं हुआ है आपके यूट्रस से, एंड इसीलिए वो आजू बाजू से ब्लड फ्लो लीक होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपने एक बार अगर आपको आ गया उसको कैसे डालना है, इट्स नॉट गोना लीक. द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ आपको एवरी 12 आवर्स चेंज करना है. अगर आपका फ्लो भयंकर हैवी नहीं है तो आपको एवरी 12 आवर्स चेंज करना पड़ेगा. आई हैव अ वेरी हैवी फ्लो एंड आई स्टिल चेंज इट एवरी 12 आवर्स और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. तो आई मीन सुबह को पहना आपने, देन रिमूव इट, लाइक यू, आपका एक खुद का ही साइकिल बन जाएगा दैट आपको दिन में सिर्फ 2 बार चेंज करना पड़ेगा. इट इज़ पेनफुल, डिस्क्लेमर. ये ईजी नहीं है. आई एम नॉट गोना से कि स्टार्टिंग में कि अरे कुछ नहीं लगता, समझ में ही नहीं आता. वो समझ में नहीं आता वंस यू नो हाउ टू पुट इट प्रॉपरली, और आपको उसकी एक आदत हो जाती है. उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ भी पहना हुआ है, एंड आपके पीरियड क्रैम्प्स को छोड़ के और कुछ पेन नहीं करेगा. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. जिनको पैड से रैशेस होते हैं, जिनको कॉटन पैड्स लेने पड़ते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज इशूज़ आर गोइंग टू वैनिश अवे. सो येस, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में पेन हो सकता है अगर आपको प्लेसमेंट प्रॉपर्ली नहीं आया, या आपको जब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी ड्राइनेस होती है. ऑल ऑफ दोज इशूज़ आर देयर, बट आपको बस डोंट यूज़ एनी ऑयल बेस्ड सोप टू वॉश द कप. उसको सोप बेस से नहीं करना है. मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ टू जस्ट बॉयल इट रियली थरली. उसको बॉईल करके क्लीन कर लीजिए, वो इनफ होना चाहिए, क्योंकि आप उसको स्टरलाइज करते रहे हैं. एंड आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं पहले और बाद में फॉर द बेस्ट ऑफ क्लिनलीनेस, बिकॉज आई थिंक हाइजीन इज सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, बिकॉज यू आर टचिंग योर वेरी इंटीमेट एरियाज. हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, बिकॉज इन्फेक्शंस और इसका बहुत ही डर रहता है. सो आपको अपने हाथ कप बहुत साफ़ रखना है, जितना हो सके उतना स्टरलाइज करना है. आप कोई भी प्लीज़ ऑयल्स और एनीथिंग कुछ भी मत यूज़ कीजिए. इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू बी प्लेस्ड ईजीली. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इट डजंट नीड एनी आउटसाइड हेल्प.
बट प्रैक्टिस एक चीज़ है जो आपको ज़रूरी है इस चीज़ में. एंड नॉट टू से द ऑब्वियस थिंग, बट ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है. हमारे पैड्स आर नॉट completely डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल. और जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं. आई मीन अगर मैं ये 2 भी खरीद लूँ, इट्स गोना लास्ट मी. अगर मैं लाइक डर के, if I just want to be cautious and if I just like throw it out in like 4 to 5 years, still it's gonna cost me very less. बहुत सस्ता पड़ेगा मुझे मेरे पैड से. तो आई वुड अर्ज पीपल टू एटलीस्ट एक बार ट्राई करने. एंड अगर आपके लिए वो काम कर गया तो उससे बेटर और कुछ नहीं है. एंड इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. मैं सच में बोलती हूँ, ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव फेल्ट बहुत अनकम्फर्टेबल ये वीडियो देखते हुए, बट ये एक नेसेसरी चीज़ है. ये एक हमारे ज़िंदगी का पार्ट है जो हम एवरी मंथ एक्सपीरियंस करते हैं. और उसका कंफर्ट, उसका हाइजीन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो आई डोंट थिंक इससे किसी को भी शर्म आनी चाहिए. एंड आई होप मैं आपको किसी भी वे में हेल्प कर पाई हूँ. आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी जानना है आपको, प्लीज़ कमेंट बिलो और ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड आई वुड लव टू हेल्प यू.